Hello, dear student. I'm welcoming you at my YouTube channel, Khatri Educational Institution. Motive to simplifying education. Our main motive to simplifying education for you. So start with our lectures and stay tuning with us. This is the first topic we will start in this lecture, that is bills of exchange. That topic cover the introduction part in this video. Upcoming videos coming for the practical examples and the journal entries of the bills of exchange. So start with our first topic and the first part of, that is introduction part of bill of exchange. Dear student, let's start with our fresh topic, that is bills of exchange. Bills of exchange is a topic of 12th commerce, as the topic covers 17 marks in your board exam. 17 marks consist of 5 marks pro forma of bill of exchange, 10 marks journal entries, 2 marks objectives. Basically, the objectives covers introduction part and due date of bill. So that introduction part and due date of bill, parties related with bill of exchange, that cover in this lecture only. So let's start with our lecture. Before starting my lecture, I would share one example which is related with the bill of exchange. Mr. Ram sells goods to Mr. Sham. To Mr. Sham on credit basis. See that Mr. Ram sells goods to Mr. Sham. It is known as a transaction. We can say it is dealing. Also we can say it is an exchange of goods. ठीक है? That exchange divided into two parts: cash transaction and credit transaction. Cash transaction and credit transaction. In cash transaction, amount received or pay on the spot. On the spot, that means when the transaction is arise, when the transaction is done. Credit transaction is amount receive or pay at future date. That future date will be decided at a time of selling of goods. At a time of selling of goods, or might be at a time of transaction is arise. Seller sells a goods at a credit basis. So the seller require a proof. That proof seems or shown that seller will receive the amount at a future date, which is known as a bill of exchange. Bill of exchange is a nothing but the negotiable instrument. Bill of exchange is a nothing but the negotiable instrument. अभी ये negotiable instrument क्या है वो देख लेते हैं. Negotiable instrument वो है जिसको बोलते हैं कि वो एक प्रूफ है, या ऐसे बोल सकते हैं वो एक प्रॉमिस है जो हमारे पास जिस पार्टी को हम लोगों ने सेल किया है वो प्रॉमिस कर रही है कि फ्यूचर डेट पे आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा. तो बिल ऑफ एक्सचेंज तब बनाते हैं जब हमारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस पे हो, क्योंकि कैश बेसिस पे तो हम लोगों को ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाते हैं या ऑन द स्पॉट पैसे पे कर दिए जाते हैं. अभी इस सिचुएशन में जब कैश ट्रांजैक्शन होती है तो हम लोगों को नॉर्मल इनवॉइस बनाना पड़ता है. नॉर्मल इनवॉइस क्या होता है? ये नॉर्मल इनवॉइस को हम लोग बोलते हैं कि ये बिल है. बट जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो जो बिल बनता है उसको क्या बोला जाता है? ये हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, आगे कवर करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो क्या है इसका. बिल ऑफ एक्सचेंज is a written document
इसमें लिखा जाता है कि मैंने कितने के गुड्स सेल किए हैं, कब सेल किए हैं, अमाउंट कब रिसीव होगा, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड लिखा हुआ है ड्रॉन बाय द सेलर, हमेशा सेलर बनाता है बिल कि ये डेट पे मुझे रिसीव करना है, इतने अमाउंट का मैंने गुड्स सेल किया है, मेरे बायर का नाम ये है, मैं सेलर हूँ, मेरी इंस्टीट्यूशन मेरी कंपनी का नाम ये है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, चलो प्रिपेयर तो कर लिया सेलर ने बना लिया उस बिल को, बट जब तक बायर की साइन नहीं होगी तब तक वो फ्यूचर डेट में पे नहीं करता है, क्योंकि एक साइन क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाता है कि हाँ बायर ने एक्सेप्ट किया है, ये अमाउंट मैं आपको ये वाली डेट पे कर दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी लिखी हुई है एक्सेप्ट बाय द बायर। बायर को इसके बिल ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में ड्रॉ भी बोला जाता है। आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। As I already told you that when the transaction is done on the basis of cash, normal invoice is to be prepared by the seller. But at a time of credit transaction, he will prepare bill of exchange. तो bill of exchange क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। फिर लिखा हुआ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग भी मैंने बताई आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ नथिंग बट द प्रॉमिस बाय द बायर टू द सेलर दैट अमाउंट विल बी पेड एज ऑन द फ्यूचर डेट। जो बिल में डेट लिखी होगी उसी डेट पे बायर अमाउंट पे करता है, उसके प्रॉमिस को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, ये है ए, ये है बी। जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन की रिजल्ट बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगी। आगे देखते हैं, इसमें कुछ कंडीशंस है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोगों को ध्यान में रखनी है। फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिक्वायर अ प्रूफ। क्यों चाहिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन का प्रूफ? बिकॉज अगर आज मैं किसी को गुड्स दे दूं और उसको बोलूं कि 2 महीने के बाद पैसे देने आना, तो 2 महीने के बाद वो पैसे देगा नहीं देगा वो ठीक है, बट हम लोगों को तो प्रूफ होना चाहिए कि हम लोगों ने उसको गुड्स दिए थे, उसने प्रॉमिस भी किया था 2 महीने के बाद पैसे देने की। तो इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का प्रूफ है। आगे लिखा हुआ है ड्रॉवर कीप विथ हिमसेल्फ फॉर अमाउंट रिसीवेबल। इसकी मीनिंग क्या है, जो सेलर है, ड्रॉवर कौन, हमारा सेलर, जो सेलर है उसको तो भाई कुछ प्रूफ चाहिए। किस बात का प्रूफ, क्योंकि उसने सेल किया है, ऊपर से उसने क्रेडिट पे भी सेल किया है। अभी क्रेडिट का तो प्रूफ होना चाहिए क्योंकि लोगों का बदलते हुए टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पैसों की बात आ गई, तो इसीलिए ड्रॉवर को हमेशा, सेलर को हमेशा प्रूफ चाहिए, वो अपने पास बिल रखता है। अभी इस सिचुएशन में मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, सेलर बिल को प्रिपेयर करता है, बायर बिल को एक्सेप्ट करता है, यही बिल 2 महीने 3 महीने जितना टाइम पीरियड लिखा हुआ है उसके ऊपर वो संभाल के रखता है सेलर अपने पास। 3 महीने के बाद वो अपने बायर के पास जाता है और बायर को दिखाता है कि ये आपने प्रॉमिस किया था, आज हम लोगों को पैसे पे कर दो। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या है, रिया सोल्ड गुड्स टू सिया on cash basis. As I already told you, if the transaction arises on the cash basis, then normal invoice prepared by the seller. यहाँ पे लिखा हुआ है invoice, normal bill prepared होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, Sia sells goods to Neha on credit basis. अगर क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है भाई, प्रूफ चाहिए उसको, प्रूफ चाहिए तो क्या प्रिपेयर होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर बनाएगा, बायर साइन करेगा, यही बिल संभाल के सेलर फिर से खुद के पास रख देगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बनाता कौन है या साइन कौन करता है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट आगे सिस्टमेटिक वे में कुछ चीजें लिखी हुई है। देखो ये इसमें लिखा हुआ है बिल को बनाएगा कौन।
फिर लिखा हुआ है बिल को संभाल के कौन रखेगा, फिर आगे लिखा हुआ है बिल का अमाउंट क्लियर कौन करेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है, क्वेश्चन मार्क्स मतलब हम लोगों को पता नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉवर, ड्रॉवर को बोला गया है सेलर, जो सेलर क्या करता है बिल को बनाता है। फिर लिखा हुआ है ड्रॉवी, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉन बिल साइन एंड एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी। अभी साइन भी करता है, एक्सेप्ट भी करता है, उसको क्या बोला गया है, बायर बोला गया है। फिर लिखा हुआ है पेई, पेई को हम लोग थर्ड पर्सन बोलते हैं। आगे देखो क्या है इसकी, ये सेम सेंटेंस पे लिखा हुआ है टू whom the amount of the bill is to be paid, किसको पे करने पड़ेंगे पैसे। तो ये कुछ पार्टीज है जो इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के प्रोसेस में। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्यू डेट। अभी इसमें मैंने आपको बताया था कि ये ड्यू डेट से रिलेटेड हमारे पास क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं एक्सटर्नल एग्जाम, दैट इज बोर्ड एग्जाम में। थोड़ा बहुत देख लेते हैं ड्यू डेट क्या है। चलो, ड्यू डेट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ बिल व्हेन द अमाउंट इज टू बी received by seller and paid by the buyer। अभी ये तो सेंटेंसेस हमारी हो गई इंग्लिश में, थोड़ा बहुत देख लेंगे हिंदी में। देखो, जब अमाउंट रिसीव होता है सेलर को और वही अमाउंट पे करता है बायर, क्यों पे करेगा भाई, अभी तो बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, उसमें मेंशन किया होता है कि 2 महीने के बाद देने हैं पैसे, 3 महीने के बाद देने हैं, जो भी डेट पे देने हैं उस डेट को या उस डेट पे जो पे कर रहा है उसको ड्यू डेट बोलते हैं। दूसरे लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। चलो आगे सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन लिखा हुआ है ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे की जाती है वो है ड्यू डेट इक्वल्स टू डेट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, जिस दिन पे गुड्स सेल हुए हैं, प्लस पीरियड दैट मीन्स वो ड्यूरेशन 2 महीने है, 4 महीने है, 3 महीने है, कोई बिल तो 1 महीने का भी बनता है। तो ड्यूरेशन और पीरियड उसमें प्लस करना है। आगे आपको क्या करना है, उसमें 3 डेज ऐड करने हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब गुड्स सेल किए वो समझ में आ गया, उसमें ड्यूरेशन 1 महीने 2 महीने जितने महीने लिखी हुई है बिल की वो भी हम लोगों ने ऐड कर दिए। ये 3 दिन क्यों ऐड किए भाई, लीगल जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना हमारे इंडिया के, वो लोग बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितना ड्यूरेशन है उनको 3 डेज का ग्रेस दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि हाँ इन 3 दिन में आप लेट पे कर सकते हो। मतलब जो डेट आएगी वो प्लस 3 डेज हम लोगों को ऐड करना है एज पर लॉ। चलो आगे, ये ड्यू डेट से रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। चलो, नोट नंबर 1, इफ ड्यू डेट विल ऑन एनी नेशनल हॉलीडे। अभी नेशनल हॉलीडे कौन सा होता है पता है आपको, 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, और क्या होता है, और होता है 1 में महाराष्ट्र डे है हमारा, फिर 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। तो ये सब क्या है, ये सब नेशनल हॉलीडे है। तो ये बोलना क्या चाहता है, देखो अगर ड्यू डेट है हमारे बिल की, मतलब जो हमारा ये कैलकुलेशन किया ना, सपोज 2 अक्टूबर आ गया या 15 अगस्त आ गया, तो हम लोगों को वो डेट पे ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बैंक हॉलीडे रहता है या सब बंद रहते हैं ना वो दिन पे। तो इसीलिए देखो, इफ ड्यू डेट विल ऑन एनी नेशनल हॉलीडे, अभी पेमेंट के लिए लिखा हुआ है पेमेंट रिसीव और पे प्रिसीडिंग अ डे बिफोर मतलब 1 दिन पहले, जब मेरा कंक्लूजन मतलब ये कैलकुलेशन के बाद मेरा कंक्लूजन डेट आया 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को हॉलीडे है, तो प्रायर 1 दिन पहले हम लोगों को वो डेट ड्यू डेट लिखनी है। तो 1 दिन पहले क्या आ जाएगा, 14 अगस्त, सिंपल है। चलो नेक्स्ट कंडीशन देखो इसकी, एनी
नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज क्या है? फ्लड, साइक्लोन। अभी देखो आजकल के दिनों में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से सब पूरा मार्केट बंद है, पूरा इंडिया लॉकडाउन है। तो ये क्या है? ये एक सिचुएशन है। नेचुरल कैलेमिटीज बोलो या कोई ऐसा चीज बोल दो जिसकी वजह से पूरा मार्केट बंद है। ऐसी सिचुएशन में जो ड्यू डेट होगी, सपोज किसी की ड्यू डेट मार्च की है, किसी की अप्रैल की होगी, तो वो तो लॉकडाउन में सब बंद है, तो ये पेमेंट वो टाइम पे नहीं करेंगे। अब ये पेमेंट कौन से दिन पे करेंगे, उसके लिए लिखा हुआ है ड्यू डेट ऑफ बिल विल बी इमीडिएटली ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे दैट मीन्स जब लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा ड्यू डेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर फ्लड है तो फ्लड से जब रिकवरी हो जाए, फ्लड से रिकवरी हो जाए या फ्लड खत्म हो जाए, उसके बाद का नेक्स्ट वर्किंग डे वो हमारा ड्यू डेट रहेगा। आगे देख लेते हैं। इससे रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ड्यू डेट कैलकुलेशन के लिए, तो वो एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अभी इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हरेश सेल्स गुड्स टू नरेश ऑन क्रेडिट बेसिस। अभी देखो 3 मार्च को इसने गुड्स सेल किए हैं 4 महीने के लिए। अभी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो बनेगा, बट हम लोगों को क्या बताना है? मैच्योरिटी डेट बतानी है। मैच्योरिटी डेट तो कुछ नहीं है। मैच्योरिटी डेट को क्या बोलते हैं? ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला भी सीखी थी, ड्यू डेट इक्वल्स टू, इसमें हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ सेल प्लस ड्यूरेशन या पीरियड, उसमें 3 डे प्लस करने हैं। अभी इसमें 3 मार्च है तो सेल्स 3 मार्च पे ही है। फिर लिखा हुआ है 4 महीने, प्लस कर दो 4 महीने। आगे इसमें 3 डे प्लस कर देंगे। देखो 3 मार्च है, 3 अप्रैल 1 महीना खत्म हो गया, मार्च अप्रैल, फिर यहाँ पे 3 में दूसरा महीना खत्म हो जाएगा। फिर 3 जून के बाद 3 जुलाई, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3 जुलाई। उसमें 3 दिन प्लस करने हैं, तो 3 डेज अगर मैं प्लस करती हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 जुलाई। 6 जुलाई क्या हो जाएगी? इसकी ड्यू डेट हो जाएगी। इससे रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। हीरा सेल्स गुड्स टू मीरा ऑन 31st मार्च एट अ क्रेडिट बेसिस फॉर 1 month क्रेडिट। द मैच्योरिटी डेट विल बी, अभी इसका भी मैच्योरिटी डेट निकालना है, तो अगर यहां पे मैं लिखती हूं, फॉर्मूला सेम रहेगी हमारी, 31 दिसंबर प्लस 1 month, ठीक है, प्लस 3 days। यहां पे मैं क्या करूंगी? 1 महीना प्लस कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 31 जैन। इसमें 3 दिन प्लस कर दिए तो इसका आंसर आ जाएगा 3 फेब। ठीक है, 3 फेब विल बी मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। 3rd ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, 3rd एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3rd एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है। विद्धि सेल्स गुड्स टू सिद्धि ऑन 23rd December at a credit basis for 1 month credit. The due date of bill will be, अभी ड्यू डेट ऑफ बिल कौन सी होगी? सेम ट्रांजेक्शन है, देखो 23rd December प्लस 1 month प्लस 3 days। ठीक है, अब यहां पे इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23rd जनवरी। इसमें मैं 3 दिन प्लस करती हूँ, 3 days प्लस किए तो 26 जनवरी आ गया। तो इसमें हम लोगों ने कंडीशन सीखी थी, अगर नेशनल हॉलीडे पे कोई आता है ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, तो उसको 1 दिन पहले लेके आओ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 जनवरी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 25 जनवरी हमारा क्या आ जाएगा? ड्यू डेट या मैच्योरिटी पीरियड। 4th देख लेते हैं।
फोर्थ में देखो क्या लिखा है, राम परचेज गुड्स। तो राम कौन है, राम तो बायर है। फिर लिखा हुआ है राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन 12th जून फॉर 2 months क्रेडिट। 12th जून को परचेज किया है 2 months के क्रेडिट के हिसाब से। मैच्योरिटी डेट पूछ रहे हैं, चलो देख लेते हैं। 12th जून प्लस 2 months, 2 months हो गए, उसमें प्लस 3 days। अभी इसमें कैसे होगा आंसर, 12th अगस्त आ जाएगा। देखो जून जुलाई एक महीना खत्म हो गया, अगस्त दूसरा महीना खत्म हो गया, 12th अगस्त आ जाएगा प्लस 3 days। अभी इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 15th अगस्त आ रहा है। भाई 15 अगस्त तो हमारा नेशनल हॉलीडे हो गया। नेशनल हॉलीडे के एक दिन पहले हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, 14th अगस्त। तो हमारी ड्यू डेट यहाँ पे आ जाएगी 14th अगस्त। ठीक है, 5th एग्जाम्पल देखते हैं हम। रूपा सेल्स गुड्स टू सुरूपा ऑन 3rd March and bill will be drawn on the 5th March। अभी इसमें मैंने आपको क्लियरली फॉर्मूला में ही बताया था। देखो डेट ऑफ सेल्स होनी चाहिए, बिल कभी भी प्रिपेयर हो वो हम लोगों को नहीं देखना है। यहाँ पे देखो रूपा और सुरूपा में ट्रांजैक्शन हुई है 3rd मार्च को, बट उन लोगों ने बिल कब बनाया, 5th मार्च को। हमारा मतलब ही नहीं है कब बिल बना रहे हैं, हमारी ट्रांजैक्शन कब हुई है, 3rd मार्च को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3rd मार्च। समझ रहे हो ना तुम लोग, 3rd मार्च, उसमें प्लस करने हम लोगों को 3 months, प्लस कर दिए। इसमें 3 days प्लस करने हैं, वो भी प्लस कर दिए। चलो देखते हैं, मार्च के बाद 3 महीने उसमें प्लस करने हैं। तो मार्च एक महीना खत्म होगा अप्रैल में, मई जून। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3rd जून, उसमें प्लस कर दिए 3 days, तो इसका आंसर आ जाएगा 6th जून। Yes, that maturity date will be 6th जून। अभी देखो ये हमारा जो पार्ट कवर हुआ ना, इसको बोलते हैं ड्यू डेट। अभी ये ड्यू डेट कैलकुलेशन करना मैंने आपको सिखाया है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता ही है। कुछ भी हो जाए, वो लोग घुमा फिरा के देंगे, दूसरे डेट्स देंगे, बट 1 मार्क के लिए वो आएगा आपके एग्जाम में। ये चैप्टर का हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जिसको बोला गया है टाइप्स ऑफ बिल। टाइप्स ऑफ बिल क्लियर है स्क्रीन? देखो टाइप्स ऑफ बिल, टाइप्स ऑफ बिल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। इनलैंड बिल की एक्सप्लेनेशन इसके नीचे ही लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। इनलैंड बिल को बोला जाता है विद इन अ बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, मतलब हमारे इंडिया में ही अगर ट्रांजैक्शन होती है तो उसको इनलैंड बिल बोलते हैं। सेकेंड लिखा हुआ है सेलर एंड बायर लिव्स इन अ सेम कंट्री, दोनों एक ही कंट्री के हो, तो इसको बोला गया है कि इनलैंड बिल है ये। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं फॉरेन बिल का। आउट ऑफ फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, हमारे कंट्री के बाउंड्रीज के बाहर जो ट्रांजैक्शन होती है और उसके जो बिल बनते हैं उसको बोलते हैं फॉरेन बिल। सेकेंड लिखा हुआ है सेलर एंड बायर लिव्स इन अ डिफरेंट कंट्रीज, उन दोनों की कंट्रीज का नाम सेम नहीं हो, दोनों की कंट्रीज की बाउंड्रीज सेम नहीं हो, मतलब खुद के बाउंड्रीज के बाहर सेल कर रहे हैं, सिंपल है। इससे रिलेटेड भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देख लेते हैं। राम ऑफ कोल्हापुर सेल्स गुड्स टू श्याम ऑफ गोवा। अभी देखो दोनों इंडिया के ही है, गोवा तो इंडिया में ही आता है, कोल्हापुर भी तो इंडिया में आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल है इनलैंड बिल। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है चिराग ऑफ मुंबई परचेज गुड्स फ्रॉम जॉन ऑफ न्यूयॉर्क। यहाँ पे जो सेंटेंस है ये तो इंडिया है, बट ये न्यूयॉर्क हमारी इंडिया थोड़ी है, हमारी बाउंड्रीज के बाहर हो गया,
हमारे बाउंड्रीज के बाहर इसको बोलते हैं फॉरेन बिल। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जॉन ऑफ न्यूयॉर्क परचेज गुड्स फ्रॉम अल्बास ऑफ दुबई। इसमें ना न्यूयॉर्क में हम रहते हैं, ना दुबई में हम रहते हैं, ना हमारे इंडिया की बात है, बट एक सिचुएशन है, हम लोगों को सोचना है, समझना है। न्यूयॉर्क दुबई से डिफरेंट कंट्री है, अगर डिफरेंट कंट्रीज हो गई तो उसकी बाउंड्रीज भी डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज का कंडीशन कहाँ पे है, फॉरेन बिल में। तो इसको क्लियरली मेंशन कर देंगे, फॉरेन बिल है, भले हमारा मतलब नहीं है, ना न्यूयॉर्क से है ना दुबई से है, बट क्वेश्चन आया है तो हम लोगों को समझाना तो है दैट ये कौन सा बिल है, फॉरेन बिल है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग प्रोफोमा सीखेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। ये पूरा जो आपने सीखा है ना, इसमें से आपको 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा आराम से, बट रिमेनिंग तो है हमारे 15 मार्क्स। 15 मार्क्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।